find river entering Arunachal Pradesh from Tibet? Yes, no. Now I draw the map of Arunachal Pradesh roughly here. This is Sikkim, this is Bhutan, this is Arunachal Pradesh. इतना zigzag करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से बना रहे हैं. Sikkim, and this is my Arunachal Pradesh. I don't want Nagaland, Manipur, Mizoram. छोड़ देते हैं. अब जरा देखो यहाँ पर. Right here Sangpo and let it enter. यहीं पर छोड़ दो. यहाँ पर आप अपने political map पर इसको judge करो. What I am trying to say. Beyond Dihang. कुछ लिखना नहीं है, अपने दिमाग में लिख लो, क्योंकि इनकी टेक्निकलिटीज जब हम इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे तो पहुंचेंगे. Beyond Dihang means halfway in Arunachal Pradesh. Eastern Arunachal Pradesh versus Western Arunachal Pradesh. So you are dividing Arunachal Pradesh. Beyond Dihang is Purvanchal. So Purvanchal Arunachal Pradesh में भी है. Are you getting it? Take it opposite. Till Dihang. Beyond Dihang we have written. Now think about till Dihang. It is Himalayas. On Indian plate converging with Eurasia created Himalayas, which is aligned east-west. Burmese plate converging with Eurasia developed Purvanchal, which is aligned north-south. Micro view हो गया ना? Are you giving me go ahead? Put your cameras on, रखो, please. Perfect. So till Dihang, it's Himalayas. So think about it. Himalayas means Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Karakoram, our sample for Trans Himalayas, is Ladakh. I think this is comfortable. Cardinals again, cleaned. Cardinals again. Northwestern Himalayas, northeastern Himalayas. Difference समझ में आ गया लोकेशन का? Northwestern Himalayas is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Northeastern Himalayas is Sikkim Himalayas. I rewrite Sikkim Himalayas and Arunachal Himalayas. We know that beyond Dihang is Purvanchal. तो अरुणाचल में जो आपको छोटे छोटे हिल्स दिखाई दे रहे हैं ना, बियॉन्ड दिहांग, मिशमी, पटकाई बोम, they are Purvanchal, they are not Himalayas. Right, all of us? And northwestern Himalayas के थोड़े से और नॉर्थ में चले जाते हैं, that is towards Ladakh. I have got Karakoram. I take it as my name for the time being for Trans Himalayas. ठीक है, 2 मिनट के लिए सब लोग पेन ड्रॉप करो, मैप खुला रहने दो, एक क्वेश्चन सोच कर देखो. We all are talking about change of the climate. We have to solve these 2 PYQs. This is from paper 1, जिसको हमने पिकअप किया. This is paper 1 and this is for paper 2. Discuss the variation in nature of glaciers in India and the emerging issues due to climate change. Paper 2, this is 2024 का question and this is 2025 का question. उसी का एक बेस तैयार कर रहे हैं, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं. अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, चेंज ऑफ द क्लाइमेट. Change of the climate is referred as dimming, warming. दोनों ही कह रहे हैं ना. We started talking about it as warming, but now it is all about change of everything to extreme. If summers are becoming extreme, droughts are becoming extreme, so winters are also becoming extreme. If heat wave conditions are becoming extreme, cold wave conditions are also becoming extreme. That is the reason the term climate change, which was initiated when United Nations Environment Program, UNEP, and World Meteorological Organization, WMO, established IPCC. I'm in late 80s. That time they concluded that it is global warming. Now we say no, it is not warming, it's change of the climate. What is likely to be the effect of the present change of the climate to the glaciers worldwide? What is likely to be effect? What will happen to the glaciers? They will start melting. They will start retreating.
They will start thinning. अच्छा, thinning का क्या मतलब है? Volume कम होता जा रहा है. Retreating का क्या मतलब है? That till the time, till the location they used to exist, snow line बोलते हैं जिसको, it has started retreating. It has started retreating. I'm just coming on to the details of that. But have you heard about, and that is the reason I've selected this term, Karakoram anomaly? Have you heard about it? Yes, no? No? Then you are living under the rock, and that is not advisable for your UPSC preparation. You need to be an aware individual. You don't need to be an intellectual to be in bureaucracy. You need to be an aware individual. Awareness. Preparation, intelligent gold medalists in their universities are not making to UPSC is very long for me to say. But I want to insist that absolutely mediocre performers have also made it to bureaucracy. So please try to be aware, informed. Every information that is coming, just don't make it random. So create out, this is the homework that you should start from day one. Create out separate books and the additional value addition small book for every topic of your syllabus. Whether it is optional or it is general studies. Optional, I'll help you how to divide it. Karakoram anomaly is a very interesting and important effect that we correlate with change of the climate. कोई भी एवरेज बच्चा इसके बारे में नहीं लिखेगा. और ये 2024 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व एंड सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. इट इज आस्किंग यू टेक नेचर ऑफ ग्लेशियर्स, सेज वेरिएशंस इन नेचर ऑफ ग्लेशियर्स. आप जब फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो आप कहते हो कराकोरम हैज सियाचिन, हैज हिस्पर बटूरा और हैज गॉट इन अदर नो से Biafo, Baltoro. There are typical glaciers mentioned in your NCERT. That is in Trans-Himalayas. Himadri has Gangotri, Yamunotri, Milam, Zemu. Give me a minute, please. Okay, so we do talk about the names of the glaciers, that we are having different types of glaciers in different locations. Variation का क्या मतलब है? अब ये तो टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा, ये आपका 1+1 जोड़ने की कैपेसिटी से आएगा. ये वेरिएशन आता है लोकेशन से, ये वेरिएशन आता है ऑल्टीट्यूड या हाइट से, ये वेरिएशन आता है डेब्री के कैरेक्टरिस्टिक. डेब्री इज व्हाट? ब्रोकन रॉक मटेरियल. और ये वेरिएशन आता है नेचर ऑफ ग्लेशियर को समझने के लिए. वी आर टॉकिंग अबाउट अल्पाइन ग्लेशियर्स इन इंडिया. आप कहोगे अल्पाइन कहां से आ गया? तो हिमालय से. Most studied young-fold mountains of the world is alpine cordilleras. So some of the names that we very technically follow is coming from alpine cordilleras. So in place of saying mountainous glaciers, we say alpine glaciers. I hope you are getting it. So alpine doesn't mean in Alps only, it denotes mountainous, tall mountainous area. So to solve this question, I remove all the mess that I have created. In paper 1 question, it is a problem that has been asked, causes of glacial lake outburst flood. And in paper 2 question, it is asking me something which is very conventional, discuss the variations in the nature of glaciers. When I learn glaciers of India, I maximum do create list. But what is variation in nature? This is your understanding level of physiography of India, climate of India, because you have to understand, Morai go to Sikkim and Arunachal Himalayas. Morai climate. Morai go to Sikkim and Arunachal Himalayas. I'll be experiencing advancing monsoonal rain this season. IMD says, now this is climatology, physical geography, that is relief feature, and also change of the climate, so it's combination. India experiences maximum precipitation when? Advancing monsoonal season.
ये PYQ कल लेंगे हम, क्लाइमेट का PYQ कल लेंगे। आज हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफी सारी चीजें हैं इसमें। एडवांसिंग मॉनसून, IMD, एडवांसिंग मॉनसून, आप इसको पॉपुलरली साउथ वेस्ट मॉनसून करके जानते हैं, पर यहां पर ये पढ़ना जरूरी है ना, वेरिएशन इन नेचर। What is the tenure of advancing monsoon? What is the time of the year when we experience advancing monsoon? तो IMD कहता है advancing monsoon और south west monsoon is from 15th June, officially आज से शुरू, countrywide. Of course, monsoonal winds tends to knock door of India, Kerala, end of May itself, first week of June, but we are talking about entire country. So 15th June to 15th September. Another monsoons that we experience in our country is called retreating monsoon, but we are not actually requiring it right now, तो इसको हम बॉक्स में करके छोड़ देते हैं, because we are talking about glaciers right now. तो monsoons हमारे पास दो तरीके के हैं। North western part of India experiences precipitation due to western disturbances. And western disturbances are typical to IMD के हिसाब से dry winter season. And what is the tenure of dry winters? It is from 15th December to 15th March. अब सोचो जरा, सिक्किम और अरुणाचल हिमालयस, which category we place them in? Northeastern Himalayas. का ग्लेशियर को फीड करने का प्रेसिपिटेशन कौन से सीजन में आए? सिर्फ समर्स में। और कराकोरम ट्रांस हिमालयस, वहां पर ग्लेशियर को फीड करने का प्रेसिपिटेशन का सीजन कौन सा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कब हो रहा है वो? विंटर्स में। और इन बिटवीन जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, ठीक है, उनको आप कहां से प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड कर रहे हो? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी, एडवांसिंग मॉनसून से भी। बना लॉजिक? ये क्या किया आपने? 1+1+1, आपने इसको, यू नॉट फाइंड इट इन बुक्स, यू हैव टू क्रिएट इट। अब इस क्रिएशन के लिए जो एक इंपॉर्टेंट बेस वर्क करना है, पहले उसको समझते हैं, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर को हम देखते हैं। बिकॉज द टर्म ग्लेशियर्स आर मेंशन्ड है, the term glacial lake is mentioned here, so we have to make sense with it। और उसका कैसे इसका आंसर क्रिएट करते हैं, I'll be sharing every PYQ that I'll be discussing with our there will be multiple, जो भी ओवरलैपिंग होगा हम सबको अप्लाई करेंगे, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ। I promise that I'll be giving you the model answer to that, but because you are getting the model answer, you should not restrict yourself towards writing, बिकॉज वी आर बिगिनिंग, अभी हमने पढ़ा नहीं चीजों को, तो अभी हम सॉल्व करने की पोजीशन पर नहीं है। बट जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे, एंड आई विल से दीज आर द PYQs, आई हैव डिस्कस्ड वन, आई विल बी शेयरिंग, देयर आर अदर क्वेश्चंस इन द सेम फ्रेम एंड आई गिव यू एज असाइनमेंट, सो यू मस्ट राइट इट। अपने लिखने की कैपेसिटी, यूपीएससी इज नॉट अबाउट लर्निंग ओनली, यूपीएससी इज अबाउट राइटिंग एंड राइटिंग एफिशिएंटली, एंड दैट कम्स अप विद राइटिंग। There is no other mantra to write than to you how to develop capacity to write, right? आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू सुनते हैं, क्या बोलते हैं वो? हम एक दिन में बैठकर 3 पेपर सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पर डे यू हैव टू सॉल्व 2 पेपर्स। आप एक दिन में बैठ के 3 पेपर सॉल्व करते हैं, मीन्स व्हाट? यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू एनहांस योर कैपेसिटी टू बी पेशेंट सिटिंग एंड राइटिंग, यू आर ऑल्सो गिविंग योरसेल्फ टाइम मैनेजमेंट। Writing is going to speed up, brush up your writing, so that has to be done. Okay, I just want to go to the another slide. कुछ important terms है, थोड़ा सा fast forward mode पर है for the time being, but I think it will give us that base with which we can apply our learning. White slide है तो थोड़ा सा adjust कर दिया। Okay, देखें जरा, be comfortable with the terms. Question is about glacial lake and question is about glaciers. So सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में रहनी है, एनसीईआरटी का कंटेंट है, जीसी लियोंग का कंटेंट है। There are certain terms that is always messed up. Terminology या keywords सिर्फ ethics के लिए नहीं है, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी है।
जितनी क्लैरिटी से, जितने प्रोमिनेंट ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज को पिकअप कर पाओगे, आपके क्वालिटी ऑफ आंसर को आप उतना ज्यादा एनहांस कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान से इस डायग्राम को देखना। इजी टू व्यू एंड अंडरस्टैंड डायग्राम है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया है। I'll just be overwriting wherever it is possible so that it becomes much more easier. Few things as boulder category. Frozen fresh water snowfall. Frozen fresh water. Frozen fresh water falling from the base of the cloud is a snowfall. Right? This is nurturing ice sheet. Ice sheet. Ice sheet is always with certain defined bedrock. Ice sheet. Ice sheet. Snow field. दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ी देर बाद लेकर जा रहे हैं। That the snowflakes eventually when is subjected to compaction, they tend to create firm. बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लेशियल टर्मिनोलॉजी का। एंड firm tends to develop glacial granules that marks the movement downslope. So first term is ice sheets. If snowfall is nurturing it, why it is becoming ice? Because snow eventually will be subjected to compaction. This is the location where supply is more than wastage. So automatically there will be accumulation. This is ice sheet written here again. I have highlighted it here. जैसे आप आइस शीट से आइस शेल्फ की तरफ जा रहे हैं, शेल्फ आइसबर्ग आर नॉट glaciers. This is what I have to prove. That is the reason I have used this slide. Ice sheet is accumulation zone. Ice shelf is extension of accumulation zone over water. ध्यान से देखते जाइए। Ice sheet over land. Ice shelf, Ronne, Ross ice shelves of Antarctica. Have you heard about it? नहीं, नहीं, बहुत गलत बात। आज जरा स्कूल एटलस खोल कर देखना, अभी नहीं। रोने, Ross are the ice shelves of Antarctica. जैसे अपने स्कूल एटलस में एंटार्क्टिका का मैप ओपन करोगे, आपको रोने और रॉस आइस शेल्फ दिखाई देगा, ठीक है। तो एंटार्क्टिका पर जो एक्यूमुलेटेड आइस है उसको आप क्या बोलेंगे? आइस शीट। द एक्सटेंशन ऑफ इट ओवर सदर्न ओशन, उसको आप क्या बोल रहे हैं? आइस शेल्फ। व्हेन दिस आइस शेल्फ is subjected to calving. Calving is breaking, melting. It tends to generate icebergs. आपको बात समझ में आ रही है? तो icebergs are the outcome of ice calving, and icebergs eventually can take up the change to sea ice level. It is possible that iceberg eventually can convert themselves to ice flows. That way also it is correct, but technically more correct is frozen sea water, sea ice is called ice flows. FLOES. Freshwater snow, frozen sea water. Frozen sea water, ice will always be fresh. That we learn in salinity. And this question was asked in your prelims general studies. When the surface water gets frozen, what happens to salinity of the frozen sea? Ice is fresh. So if it is ice flows, sea ice, इसका मतलब salinity बहुत high होगा इसके नीचे. It gets concentrated in the subsurface location. So just apply it. Ice shelves with its breaking, called ice calving, develops iceberg. In general terminology, we say icebergs or ice flows are same, that I can take them to be different in the size. This is bigger in size, this is smaller in size. But technically speaking, ice flows are sea ice.
frozen surfaces of sea water, and iceberg is a detached part of ice shelves. ठीक है, क्या क्या टर्म समझ में आया? आइस शीट समझ में आ गया, आइस शेल्फ समझ में आ गया, आइसबर्ग समझ में आ गया, और आइस फ्लोज समझ में आ गया. एंड नन ऑफ देम इज ग्लेशियर. None of them is glacier. Glacier almost the same thing. Floating ice shelf, iceberg हमने आपको समझा दिया है, तो nothing new है. एक जो इन्हों नाटक है इसको फॉर द टाइमिंग अवॉइड ही करते हैं. जब हम ग्लेशियल टोपोग्राफी पढ़ेंगे तब इस स्लाइड को आपको डिटेल्स में समझाएंगे. लुक एट दिस. स्नोफ्लेक्स बहुत इजी, एनसीईआरटी लेवल की इंफॉर्मेशन है. एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में ही डेवलप किए गए स्लाइड्स हैं. बेसिक टर्म्स समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. Snowflakes, precipitation. Precipitation is that mechanism of hydrological cycle which is defined as falling of moisture from the base of the cloud. Moisture can fall from the base of the cloud in variable forms, variable states of water. And that is where we classify them as rainfall, drizzle, snowfall, sleet, glaze, hail, and many more. Right here we are talking about snowfall, frozen form of precipitation. When it falls, it is snowflake. Snowflake eventually consolidate to become granular snow, and further compaction of it creates firn. Compaction. And this compacted firn can create glacial ice. Now the question is, ice sheets, and I want to supplement with the term ice fields. I can understand. They are what? Where the ice has got accumulated, firn has got accumulated. Understood? What is glacier? Glacier is moving mass of snow and ice. So iceberg, ice shelves and ice flows are not glaciers. What are glaciers? Moving mass of snow and ice. Why does it move? It moves because in the zone of accumulation, you have accumulated that much of snow and ice that it is surpassing the angle of repose and will start moving under the effect of gravity. Gravity in the mountainous region will be steeper, so will create which type of glacier? Alpine glacier, sourced from alpine snow fields. Okay? What will be continental glaciers? Continental glaciers are moving mass of snow and ice which is sourced from continental ice sheets. So glaciers are different from icebergs. Simple logic. And how do I classify the glaciers? वो भी बहुत important है, but that is going on more with the reference of this. I have explained. Snowfall, snow turning into ice, accumulation zone. This will be what? Snowfield, ice sheet. आपको gravity दिखाई दे रही है. As it will be moving down, it will by default be subjected to warming effect and thus will start ablating. टर्म डिफिकल्ट है, यहां पर लिख देते हैं, अभी ज्यादा डिटेल्स स्लाइड के बारे में नहीं बताएंगे. अब्लेशन, ये टर्म पकड़ो, इज मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस. If all the expression written in this slide is not for our importance, then why we are following it? We are following it because of one important thing, जो ज्यादातर बच्चों को confusion create करवाता है. यहां पर सप्लाई इज मोर देन अब्लेशन. क्या होगा? एक्यूमुलेशन जोन. एज यू डिसेंड डाउन स्लोप, you will be having sublimation is the process of converting ice into vapor state. Evaporation is the over applied term that by default includes evapotranspiration and sublimation. Evaporation is more defined because we are blue planet. 70% of our surface is water. So by default will be more applying what? Converting water to vapor state, evaporation. Transpiration, sublimation, it's all there. So we are having that ablation.
Ablation is leading to, ये जो यहाँ पर मूवमेंट होगा ये ग्लेशियर है, and when it has marked up iceberg carving and creating, ये आपने बहुत सारे इंस्पिरेशनल थॉट में पढ़ा होगा, this is your iceberg. People see your success but not the hard work and the sacrifices and etc. that you do, because iceberg shows only a small part on surface, it has got maximum as a depth. तो ये आइसबर्ग है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस को याद रखना है, ये मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस, इसको आप ग्लेशियर बोलते हैं। एंड ग्लेशियर की जो कैटेगरीज है वो फटाफट से देख लो, हियर इट इज। ये सब मूविंग मास, आइस फील्ड, सर्क ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर, पीडमोंट ग्लेशियर, टाइड वाटर ग्लेशियर। लोकेशन वाइज आप बहुत सारे ग्लेशियर अप्लाई कर सकते हो। हमें कौन से ग्लेशियर की बात करनी है? पेपर 1 के क्वेश्चन में हम दोनों की बात कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स एंड अल्पाइन ग्लेशियर। बट पेपर 2 के क्वेश्चन में इंडिया, आई हैव टू टॉक अबाउट अल्पाइन ग्लेशियर। वी आर विच कंट्री? ट्रॉपिकल, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर्क्स आर वेरी टेक्निकल टर्म, बात नहीं कर रहे। वैली यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज बिटवीन द माउंटेन वॉल। Piedmont denotes foot of the mountain, Piedmont at the foot of the mountain. तो ये लोकेशन के हिसाब से डिमार्केट करते हैं। एंड टाइड वाटर ग्लेशियर, टाइड वाटर, हाई टाइड, लो टाइड, एक्सपोज, दैट इज हाउ इट इज। बट वी प्रिंसिपली टेक इनटू रेफरेंस, इन सबको किस में डाल देते हैं? दे ऑल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट ग्लेशियर्स, एज विल बी एप्लीकेबल टू Antarctica, Greenland. As soon as the Trump administration number 2 began, अब तो क्या ट्रम्प ने अपना पूरा, if I use very crude term, पप्पू बनवा लिया। But when the administration second term began, it was on a very strong and very powerful country, and Venezuela happened, and almost parallel Greenland. We want to annex Greenland as our territory. And that time we had elaborate analysis, I have also taken that analysis, that what makes Greenland such a potboiler is not its location, but its critical mineral resources possibility, because it is also shield. अभी के लिए अगर समझो तो ग्रीनलैंड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही है जो हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू का है। That means it is resource adobe, but 80% of Greenland is covered under आइस शीट्स, इसलिए वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कॉन्टिनेंट ग्लेशियर का, नदर्न हेमिस्फीयर। एंड एंटार्क्टिका बाय डिफॉल्ट इज एक्सीलेंट फॉर सदर्न हेमिस्फीयर। एंड वर्सेस हिमालयाज, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, इंडियन कॉर्डिलेराज, अल्पाइन कॉर्डिलेराज। कौन से ग्लेशियर्स बताएंगे? अल्पाइन बोलो, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो मोन्टेन में कन्वर्ट कर दो, montane glaciers. How many types of glaciers are there? Continental and alpine. Are they similar as ice shelves and icebergs? Moving mass of snow and ice is glacier. And glacier is sourced from ice sheets or snow field. What is snow field? That location where accumulation is more than, technical term, accumulation is more than ablation. What is getting accumulated? Snowfall. How it is getting accumulated? Snowfall is facilitating development of snowflakes, ice granulars, which is called what? Firn, that tends to develop glaciers. मेरे ख्याल से टर्म समझ में आ गया। अब हम वापस से उस वाले क्वेश्चन पर आ रहे हैं जिससे हम अचानक से आपको यहां ले गए। काराकोरम, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, पूर्वांचल में। काराकोरम, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, इन तीनों जगह पर हमारे पास ग्लेशियर्स है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेरिएशंस इन द नेचर ऑफ द ग्लेशियर्स and challenges in terms of change of the climate. तो चैलेंज तो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर रहा है? 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड।
अब दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है और दोनों चीज़ों को कंबाइन करके स्टडी आउट करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आंसर शेयर जरूर करेंगे, बट आप सबसे पहले तो इसको लर्न करें, सब कुछ समझने की कोशिश करें। आई एम ऑन माय बोर्ड अगेन। ग्लेशियर लेक्स हैं क्या? व्हाट आर ग्लेशियर लेक्स? हाउ डू आई डिफाइन ग्लेशियर लेक्स? अगर अपलेडेड वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो लेक थोड़ी ना बनाएगा। ग्लेशियर लेक्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में बात कर रहे हो, तो सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी ना कि ग्लेशियर लेक्स है क्या। ग्लेशियर लेक्स आर upbladed, that is melt water that gets accumulated. Question arises, why do it gets accumulated? I have got some of the very important images to help you understand. I'll just make you understand it. There are two principal categories of glacial lakes. Which are the two principal categories of glacial lake? एक को बोलते हैं मोरेनिक और एक को बोलते हैं आइस डैम्ड। अब मोरेन टर्म हमारे लिए थोड़ा सा नया है। मोरेनिक, मोरेन मीन्स व्हाट? अगर आप ये वाला इमेज देखोगे तो आपको थोड़ा आराम से समझ में आएगा, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अ ग्लेशियल लेक ऑफ नेपाल, Himalayan region, of course not Himalayan region in Indian territory. It's Imjasou Glacial Lake, ठीक है। तो it's Himalayan region but in Nepalese Himalayas. I can see glacier moving mass of snow and ice दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये आपका लेक है। I am purposefully demarcating it as a bubble like this. इसमें ब्रीच भी दिख रहा है, but I don't want to emphasize on breach. I want all of you to please concentrate on this. ये दिखाई दे रहा है। I'll remove all the shades that I'll be doing. It's a sort of a barrier that is being created by what? Seasonal retreat of the glacier. आप मोरेन को क्या बोल सकते हो? बिगनर, एक हम इंटर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। What is moraine? I have got two types of moraine seen here. ये भी सारा मोरेन है, नोटिस कर पा रहे हैं? ये साइड में है, ये टुवर्ड्स एंड है, इसलिए हम इसको लैटरल मोरेन बोल रहे हैं, इसको टर्मिनल मोरेन बोल रहे हैं। व्हाट आर मोरेन्स? आई क्लीन इट अप। अब देखो जरा इमेज को आराम से। व्हाट आर मोरेन्स? मोरेन्स आर अनकंसोलिडेटेड, कुछ सीमेंटेड नहीं है, बस छोड़ दिया गया है, अनकंसोलिडेटेड, वेरिएबल टेक्सचर, बड़ा छोटा हर तरह का पत्थर छोड़ दिया, अनकंसोलिडेटेड, वेरिएबल टेक्सचर, डेब्री डिपॉजिट। लगातार ग्लेशियर अगर उसको डिपॉजिट करती रहेगी तो अब बाय डिफॉल्ट एक बैरियर बना देगी। उस बैरियर पर मान लीजिए समर्स में, विंटर्स टेम्परेचर विल डिप, ablation melting process will be reduced, summers melt of glacier will increase। हमारी नदियों में, हिमालयन रिवर में समर्स में ही फ्लडिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि मेल्ट वाटर भी आ रहा है और रेनी सीजन भी हमारे कंट्री का कब है? समर्स में। तो वी आर हैविंग सरप्लस वाटर। तो जब ग्लेशियर मेल्ट करने लगेगा समर्स में तो ऑटोमेटिकली वो पानी डिस्चार्ज करेगा। अब मोरेनिक बैरियर ने क्या कर दिया? एक डैम बना दिया ना, उस डैम की वजह से क्या होगा? पानी एक्यूमुलेट करेगा। Is that comfortable? So one reason for a development of glacial lakes is a seasonal ablation where discharge of water is restricted by morainic dams. तो पहला टाइप ऑफ ग्लेशियल लेक कौन सा हो गया? मोरेनिक डैम्स, ठीक है। अच्छा, इमेज से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, गोइंग बैक टू बोर्ड। अबलेटेड, अबलेशन कहाँ होगा? अबलेशन होगा जब आप स्नो फील्ड से काफी अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल करके कंपैरेटिवली वार्मर एरिया में आ गए। माने आप हार्ड कोर एंटार्क्टिका से सदर्न ओशन पर पहुंच गए हो, या आप बियॉन्ड 5500 मीटर्स ऑफ हाइट से पहुंच गए हो 3000 मीटर्स ऑफ हाइट पे, जहां ग्लेशियर को मेल्ट करना ही पड़ेगा। तो जो मोरेनिक ग्लेशियल लेक्स होते हैं, दे आर लार्जली at the end
ऑफ, हेल्प करो, क्या लिखे? स्नो फील्ड। लार्जली, ओनली नहीं हो सकता। अनकंट्रोल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज ओनली नहीं हो सकती, इट्स लार्जली। अब इमेजिन करें आइस डैम, टेक्निकल इमेज तो ऐसा दिखेगा, अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिर भी समझ में आएगा। देखो जरा, आइस डैम तो कुछ दिमाग में लगाना, बस सिंपल से दो चीजों को ओवरलैप कर रहे हैं, ध्यान से देखो। I'll just be highlighting it. No retreating, no nothing. ये मेरा ग्लेशियर मास है, आपको बता दिया मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस को ग्लेशियर बोलते हैं। ये मूव कर रहा है इसलिए आप इसको ग्लेशियर बोल रहे हैं। और मूव करते हुए ये क्या कर रहा है? मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करते हुए क्या करेगा? इट विल क्रिएट आउट लेक। तो ये जो इसने चैनल बनाया है, चेंजिंग द कैनल, ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो इसने कुछ पानी का चैनल बनाया, यहाँ रिवर लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। भाई ये क्यों एक्यूमुलेट हो जाएगा? क्योंकि इसके सामने मुझे एक दूसरा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। सॉरी, इसके सामने मुझे एक दूसरा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। इस आइस ने इस लेक को डैम कर दिया, तो क्या होता? नन ऑफ यू आर having the legitimate right to transcribe this meeting. Anyone who is doing is unethical, so kindly stop doing it. I'll definitely find it out eventually. आप अभी से उसको रोक दीजिए। One glacier is ablading. It is creating the abladed water flow because there is another glacier in its path. Ice dam has created this lake. Can we understand that one melting ice is obstructed by another ice field and its glacier means you will be right there in much colder location. You will be much there in the areas where ablation still will be weaker than accumulation. Yes, no, making sense? I'm not aware of any technicalities of glacier. I'm absolutely in the beginning step, but still I can make sense with this. And when I can make sense with this, I just want to write it here and write it very clearly that ice dammed lake, batao jaldi se, will be more near or proximate. Of course, not absolute accumulation zone, but it will be more near source. I think it is making sense. How many types of glacier lakes are there? There are two types of glacier lakes. What are glacier lakes? Glacier lakes are accumulated melt water of glaciers. Okay? How many types of glacier lakes are there? Morainic and ice dammed. Morainic and ice dammed glacial lakes can lead to the flooding. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। हम जब ये दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं ना, फ्लड एंड फ्लडिंग, व्हाट आर फ्लड्स? अगर हम लैब सिटिंग टर्मिनोलॉजी, हैव यू हर्ड अबाउट दैट ड्यूरिंग मॉनसूनल सीजन, टेक्निकली आज से हमारा मॉनसूनल सीजन शुरू हो गया है, दो दिस ईयर एंड द कमिंग ईयर इज डिक्लेयर्ड टू बी द गॉडजिला एल नीनो ईयर, एंड वी आर expecting, God forbid, that it doesn't come up that way, and we are having the possibility of somewhere compensation by Indian Ocean Dipole, but the predicted superheating of the surface water of Pacific is likely to create havoc to our monsoonal mechanism. But during monsoonal times, I do come across a ready reference when it comes to flood as natural hazard, that this river, that river is flowing at near danger mark. Have you heard about it? Danger mark suna hai? River is flowing at near danger mark. Thus the people in the catchment area have been evacuated because there is a likely possibility of flooding. So thoda sa dhyan se sunna. This is my bank of a river. I'm just showing one bank. This is my average flow level of the river. During rainy season, water level by default will rise of any river. So that seasonal rise in water level, seasonal rise in water level is called flood. Flooding is when the river tends to overflow its bank. And when it overflows its bank, it tends to inundate the areas which are normally dry.
every flood do not lead to flooding, but every flooding is preceded by a flood. तो फ्लड और फ्लडिंग को लैब में बैठकर हम ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं, बट इन जनरल फ्लड एज हजार्ड एंड इट्स मिटिगेशन, हम फ्लड को फ्लडिंग के साथ ही बाय डिफॉल्ट रिलेट करके चलते हैं, ठीक है। सो फ्लडिंग इज व्हेन देयर इज सडन डिस्चार्ज ऑफ द वाटर। Now Moranic Dam has created Glacier Lake, Ice Dam has created Glacier Lake, both when is breached। अब वो ब्रीचिंग के मल्टीपल मैकेनिज्म हो सकते हैं, उन्हीं को आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू राइट इट ऑन द सेम। Moranic can have its breaching, glacial lake outburst flood, तो डैम ब्रीच हो जाएगा तो फ्लडिंग हो गई। डैम ब्रीच क्यों हो सकता है? तो मोरेनिक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, सो आई राइट इट हियर GLOF, कैन बी कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ मोरेनिक डैम। कितना कंसोलिडेटेड है, कितना ही होगा। How do I apply moraine? Unconsolidated debris deposit deposited by melting glacier. It is unconsolidated. So it is not that wall that we have created as Bhakra Nangal. So if the accumulated water at its back is surpassing its barrier capacity, it automatically will breach. And once it breach, it will create flood. And it can also be with a different triggering mechanism. अब ये triggering mechanism क्या हो सकते हैं? Earthquake हो सकता है, heavy rainfall हो सकता है, increased ablation हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। इसमें आप फेस वैल्यू पर कहोगे तो कहोगे भाई अर्थक्वेक तो ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं करता। अर्थक्वेक इज सडन ट्रेमरिंग ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड एनर्जी इन डिफॉर्म्ड रॉक्स। बट अर्थक्वेक जो ट्रेमर्स हैं वो क्या ट्रिगर कर सकता है? लैंडस्लाइड। क्यों कर सकता है? Because I have unplanned built up area, हो सकता है ना। तो अर्थक्वेक को अगर हम बबल में डाल के साइड में भी हटाएं, what are the triggering mechanism? एक तो हो गया भाई what is the resistance or the capacity of the Moranic dam। अगर accumulated water is surpassing that capacity of the Moranic dam, automatically it will be breached, and if it will be breached, there will be the glacial lake outburst flood। The triggering mechanism can also involve several external factors। अब उस external factors में कम से कम इन दो को तो आप चेंज ऑफ क्लाइमेट के साथ रिलेट कर सकते हैं। एक्सेसिव अब्लेशन तो क्या होगा? डिस्चार्ज बढ़ेगा। हेवी रेनफॉल अनप्रेसिडेंटेड, आपने उत्तराखंड के ड्रेडेड इमेजेस अभी पिछले साल के देखे हुए हैं, आपको पता है किस तरह से पूरा का पूरा सेटलमेंट बहा कर ले गया द क्लाउड बर्स्ट। So such type of heavy downpour which can add to landslide automatically will result into Moranic Dam glacial lake breach। तो ये डेफिनेटली क्या क्रिएट कर देगा? ये कुछ ऐसा क्रिएट करेगा। यहाँ तो बड़ा डिसेंट सा फिगर दिख रहा है, बट एज हजार्ड बाय डिफॉल्ट इट क्रिएट्स मैक्सिमम मेजर हेवॉक। देखो जरा, ये मेरा मोरेनिक डैम दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए लेक जो है इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई, इसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो ये मोरेनिक डैम को ब्रीच कर दिया। अब ये ब्रीच एक नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है कि भाई यू हैव एक्यूमुलेटेड वाटर सो मच दैट दिस डैम इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग इट, वो ब्रीच कर गया। इस केस में तो कोई मेजर हजार्डस डाउन मूवमेंट नहीं हो सकता, बट दिस ब्रीच कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड विद व्हाट? हेवी डाउनपोर, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड वाटर विच कैन लीड टू दिस ब्रीच। और ये क्या जनरेट करता है? हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव, आई विल राइट इट विद दिस, इट्स पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप कैसे होगा?
जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा ब्रीचिंग ऑफ मोरेनिक रिज, उतना ज्यादा heavy flooding in the downslope area. So whether it is because of the resistance or nature of the structure of moraine or external trigger, moranic glacial lakes can trigger glacial lake outburst flood. What are the mechanisms that can trigger that? It can be earthquake, it can be landslide, it can be ablation, it can be heavy precipitation that leads to breaching up of the moranic dam. I think this is comfortable. अब अगर हम बात करें ice dammed, and in Himalayas it is majorly this. I'm coming on to Himalayas, I'll draw the diagram of the mountain. अच्छा, अब हम बात करें दूसरे कैटेगरी के, it is ice dammed. Will it also lead to the glacial lake outburst flood? Yes, it can. So ice dammed glacial lake outburst flood is largely correlated with excessive ablation, when will result into rise in the levels of glacial lake. आइस का जो डेंसिटी है वो कम है पानी से, वो बाय डिफॉल्ट राइज अप करेगा, एंड दैट कैन क्रिएट दी सब ग्लेशियर कॉन्डुइट पाइप्स पैसेज, जहां से पानी बाहर सीप डाउन कर जाएगा. सीप डाउन करेगा तो क्या करेगा, ग्लेशियल लेक फ्लड ही तो क्रिएट करेगा डाउन स्लोप एरिया में. बट ये इतना हजार्डस नहीं होता. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे चलता चला जाएगा, लेक की कैपेसिटी कम होगी, वाटर लेवल विल रिसीड, ice will again dam its lake. क्योंकि it is more near the source area, it doesn't have that much of effectivity. So we do have the possibility of ice floatage leading to the seepage of water via subglacial, but it doesn't create that much of the havoc kind situation that I relate to. आपको एक और रीजन बताना है मुझे, that I relate to moranic dam. My question to all of you, I started today's class saying hazard becomes hazard when it influences human population, है ना? Hazard becomes hazard when it is influencing human population. जब आप moranic GLOF को ice dammed GLOF से कंपेयर करते हो, तो I am saying this is more prominent as hazard than this. Because there can be the sudden nature of breaching and etc. Here the nature of sudden breaching may not be that strong. Second reason please, यहाँ लिखा हुआ आंसर. When it is more proximate to the snow field, it is unlikely to have human settlements. Yes or no? और बाकी जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है, अर्थक्वेक इसको भी ब्रीच कर सकता है, अबलेशन इसको भी ब्रीच कर सकता है. तो ऐसा नहीं है कि वी रूल इट आउट एज हजार्ड, बट वी पुट इट इन अ वीकर वर्जन कंपेयर टू मोरेनिक. आपको बात समझ में आ गई? इंडिया में जो भी एग्जाम्पल हुए, केदारनाथ 2013, सिक्किम 2023, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोरेनिक GLOF. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं. उसके बाद द क्वेश्चन दैट वी हैव एनकाउंटर्ड, हियर इट इज. I don't want to mess up with the language of the question. So जो एकदम absolute PYQ का language है ना, उसको emphasize करने के लिए I will largely be taking up support of slides, खुद लिखने के बजाय, ताकि हम language को manipulate ना करें. Explain the causes of glacial lake outburst flood. Answer बन पाएगा? Yes, no. ग्लेशियल लेक्स के कितने टाइप हैं, ग्लेशियर लेक्स की ब्रीचिंग के कितने टाइप्स हैं, फिर एग्जाम्पल साइट कर दो, नेपाल का कर दो, हिमालयास का कर दो, आपका आंसर बन गया. सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है. अब आप पेपर 2 के क्वेश्चन को देखो. डिस्कस की पॉइंटर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, यहीं पर ही फ्रेम देंगे, फिर बोर्ड पर जाएंगे. वेरिएशंस इन नेचर ऑफ ग्लेशियर्स इन इंडिया. तो मेरा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ, ग्लेशियर्स मत बताओ, वेरिएशंस इन नेचर ऑफ ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया बताओ. तो इंडिया में तो अल्पाइन ग्लेशियर्स ही मिलेंगे.
इंडिया इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसूनल कंट्री। मॉनसून को हटाओ, साइड में भी नहीं चाहिए। ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल का मतलब है कि वी आर बोर्न कंट्री, एंड इफ वी आर बोर्न वी डेफिनेटली विल हैव स्नो लाइन एट ग्रेटर हाइट। तो ग्रेटर हाइट मतलब हिमालयाज में ही पहुंचो, वहीं पर ही मिलेगा ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स मेरे पास सिर्फ अल्पाइन है। And then second part of the question says the emerging issues due to climate change. What will be it? इसको यहां से डिराइव करो, ये आपको समझा चुके हैं। GLOF कौन सा टाइप होगा इंडिया का? गांधी सागर, केदारनाथ, सदर्न लोअर सिक्किम, सब एग्जाम्पल है मोरेनिक। अब क्वेश्चन का पहले पार्ट को हैंडल करना है, वेरिएशंस इन नेचर। तो इसके लिए I'll come back to this question again। हमें बोर्ड पर जाना पड़ेगा, हमें फ्रेम करने के लिए जगह चाहिए, तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे। अब हमने जानबूझकर लिख दिया अल्पाइन, क्योंकि हमने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में बता दिया दैट इंडिया इज हैविंग अल्पाइन ग्लेशियर्स ओनली बीइंग अ वार्मर टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अच्छा वेरिएशंस हम किस किस पॉइंट पर बता सकते हैं? सबसे पहला वेरिएशन बता दो, लोकेशन। लोकेशन पर क्या वेरिएशन होगा? तो आपको पता है ना, कार्डिनल्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ट्रांस हिमालयस। लोकेशन पर आप ग्लेशिएटेड एरियाज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड विथ इंक्रीज इन हाइट। इस फैक्टर को अपने दिमाग में रखना है। लोकेशन के हिसाब से हम अपने कंट्री के ग्लेशियर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका हमने सिनॉप्सिस आपको पहले भी बताया, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ रखते हैं, बट इसके बारे में बात करना है। तो वेरिएशन का पहला पॉइंट हुआ लोकेशन। लोकेशन का पहला पॉइंट होगा जी कराकोरम वर्सेस नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। लोकेशन हो गया ना। लोकेशन के हिसाब से जब आप बात करते हो तो आप कहोगे कराकोरम इज मेजरली नर्चर्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, विंटर प्रेसिपिटेशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बाकी सब चीजों को छोड़ो, टेक्निकलिटीज को छोड़ो। आप असम से राजस्थान ट्रैवल करो, mentally travel करो, what will happen to the prevailing climatic condition? Numansi ice dammed GLOF is unlikely in alpine region, it is more likely in continental glacier region. चलो हमारा क्वेश्चन क्या था? हम क्वेश्चन भूल गए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या पूछा था हमने अभी? हाँ, हम आपको कह रहे थे ट्रैवल करो असम से राजस्थान, क्या होगा क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन का क्या होगा ये बताओ? डिक्रीज करेगा। माने जब आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, छोड़ो, हो रहा है ना। अच्छा दूसरी बात, केरला वर्सेस पंजाब, कौन सा स्टेट है जो ज्यादा वेट है? केरला। कोई प्राइस ऑफ गेसिंग थोड़ी ना। इसका मतलब साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो भी प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, कंबाइन कर दो। Precipitation in India decreases from south to north and from east to west. आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो एडवांसिंग मॉनसून से तो बारिश हो रही है। काराकोरम में किससे बारिश हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो विंटर है। जब हिमालयाज में स्नोफॉल होता है समर के टाइम पर, तो स्नोफॉल अपलेट भी हो रहा है। विंटर पर होगा तो क्या होगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, थिकर मास ऑफ ग्लेशियर। वेरिएशन बताना है ना। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में डुअल प्रेसिपिटेशन। अब बोलो डुअल क्या हुआ? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी कुछ होगा, एडवांसिंग मॉनसून से भी कुछ होगा। मॉडरेट, तो ये थिकेस्ट नहीं है, ये मॉडरेट थिकनेस है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आराम से भी लिख रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो क्या होगा? सिर्फ साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम में प्रेसिपिटेशन होगा स्नोफील्ड टॉप एरियाज में, एंड इट विल क्रिएट थिनेस्ट ग्लेशियर मास। अब एग्जाम्पल लिखो, सियाचिन,
बियाफो, बलतोरो, हिस्पर, बटूरा, बहुत सारे हैं, एक दो नाम लिख रहे हैं अभी। ये हो गया गंगोत्री, इससे अच्छा चॉइस कुछ है ही नहीं। ये हो गया जेमू, जेमू इज सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता, सिक्किम हिमालयाज में है ये ग्लेशियर, ठीक है। वेरिएशन 1, लोकेशन के हिसाब से सोर्स एरिया बता दिया, नेचर ऑफ ग्लेशियर बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया एग्जामिनर को। पहला पॉइंट हो गया, रुकना नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां से आएगा, इसलिए हमने साथ में लिखा, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम नॉर्मली इसको हमेशा जब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिलीव भी पढ़ाएंगे तब भी इसको रिपीट करेंगे। अपने दिमाग से मिथ हटा दो कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज टॉल है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज टॉल नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज आर नॉट पूर्वांचल। इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 बोलते हो ना, पर K2 टेक्निकली तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। एक्चुअली इंडियन डोमेन में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कंचनजंगा, और वो कहां पर है? सिक्किम में। आर यू गेटिंग इट? K2 ट्रांस हिमालयाज का पीक है। आफ्टर माउंट एवरेस्ट सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज कंचनजंगा विच इज देयर विद अस। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की हाइट में कोई कमी नहीं है, तो हाइट फैक्टर को अपने दिमाग में जरूर रखना है, लेकिन हाइट को लोकेशन के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि आपसे एग्जामिनर ने पूछा ना वेरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हाइट को आप अलग से लिखो, इसी को श्रिंक कर रहे हैं। अब हाइट को जब आपने अलग से लिखना है तो आप ये नहीं कह रहे हो कि काराकोरम ज्यादा टॉल है और नॉर्थ ईस्टर्न, ना, ये नहीं। आप क्या कह रहे हो, थोड़ा सा सोचो। सेकेंड फैक्टर, चलो दूसरे स्लाइड पर जाते हैं, क्यों यहां मिसअप करें। सेकेंड फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड विद इंक्रीजिंग हाइट। आप लो लैटिट्यूड पर है तो आपका सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई है, सिंपल सा लॉजिक है ना। आप पहुंचो एंटार्क्टिका में तो आपको आइस शीट्स और आइस शेल्व्स, बाउंड्री बताना ही बड़ा मुश्किल होगा सरफेस पर रहोगे तो। क्यों? क्योंकि स्नो लाइन इज एट मीन सी लेवल। हम एक जनरल असेसमेंट बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ये मेरा एक हाइपोथेटिकल माउंट है, ये हमने स्नो लाइन बनाया। स्नो लाइन का मतलब है यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके ऊपर की जितनी जगह होगी वहां पर अबलेशन इज लेस देन एक्यूमुलेशन। यहां पर आपको मिलेगा स्नोफील्ड। समझ में आ रहा है सबको? अब ये जो स्नो लाइन है ना, जहां 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो लैटिट्यूडनली डिफर करता है। अगर 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पर देखोगे तो ये आपको 5500 मीटर से ऊंचाई पर मिलेगा। 30 डिग्रीज पर आ जाओगे तो 45,000 मीटर्स पर मिलेगा। 60 डिग्रीज पर आ जाओगे तो शायद 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा, और 90 डिग्रीज माने पोल्स पर पहुंच जाओगे तो मीन सी लेवल पर मिल जाएगा। क्यों? टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड विद हाइट। तो हम तो ट्रॉपिकल कंट्री है, तो लैटिट्यूड तो हमने स्टेबलाइज कर दिया, तो मतलब हमारा जो 30 डिग्रीज के हिसाब से 4500 मीटर के करीब हमारा स्नो लाइन होना चाहिए। तो हमारे लिए इसलिए अल्पाइन ग्लेशियर्स है, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। पर ये जो 4500 मीटर है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोर आई गो ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में हैं, आप ज्यादा मरी टाइम क्लाइमेट है। आपको समझ में आ रहा है मुंबई और दिल्ली के क्लाइमेट में क्या फर्क है? मुंबई में, अब क्लाइमेट चेंज को हटा दो, पर मुंबई में इतनी ना गर्मी पड़ती है ना इतनी ठंड पड़ती है, इक्वेटेबल क्लाइमेट है। और दिल्ली में गजब की गर्मी, गजब की ठंड। क्यों? कॉन्टिनेंटल है। अब सोचो, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज वर्सेस नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, मोर मरी टाइम, मोर इक्वेटेबल,
वहां पर स्नो लाइन आपको 5,500 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा, और जब आप पहुंचोगे गंगोत्री यमुनोत्री पर तो आपको हाइट मिल जाएगा 4500 मीटर पर। कराकोरम में भी 4500 मीटर पर ही मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, मरीटाइम, और नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम होना ना, तो ठंडा जल्दी होगा, तो विद इंक्रीजिंग हाइट यू विल रीच स्नो फील्ड जल्दी, एंड इन ईस्ट इट विल बी लेस। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका स्नो लाइन 5000 मीटर्स प्लस पर चला जाता है, नॉर्थ वेस्ट में आपका स्नो लाइन 4500 मीटर्स के आसपास रहता है। और कराकोरम की बात करते हैं तो इट लाइज टू, अब इसके लिए हम ये इस कोन को हटा दें, इसको भी हटा देते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का कंपैरिजन तो हो गया, अब बचा कराकोरम। आप कभी भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि जब आप बात करते हो सियाचिन की, उसका जो स्नाउट लेंथ है, स्नाउट का मतलब होता है ग्लेशियर मास, अभी आपको हमने डायग्राम दिखाया था, ग्लेशियर इज मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस। तो स्नाउट मतलब वो कहां तक एक्सटेंड करता है, ये जो इसका लेंथ है उसको स्नाउट बोलते हैं। विंटर्स में ये बढ़ेगा, समर्स में बाय डिफॉल्ट रिट्रीट करेगा ना। तो सियाचिन का जो स्नाउट लेंथ है मोर देन 70 किलोमीटर्स है, माइनस ग्लोबल वार्मिंग, विंटर्स में 76 किलोमीटर्स तक होता था। ये कहां पर है, ट्रांस हिमालयाज में। ट्रांस हिमालयाज क्या है, कॉन्टिनेंटल। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज क्या है, कॉन्टिनेंटल। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री का स्नाउट लेंथ 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, 50 किलोमीटर का अंतर। एक अगर लद्दाख और दूसरा केरला में होता तो फिर भी समझ जाते, दोनों पड़ोसी हैं, लोकेशन सेम है, दोनों कॉन्टिनेंटल हैं, दोनों का एलिवेशन कॉन्टिनेंटल है, इसका मतलब स्नोफील्ड का एलिवेशन भी सेम ही है। तो सियाचिन, हिस्पर, बटूरा, वाई आर मच लेंदियर। हम इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे, विदाउट एनी डाउट गंगोत्री से बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इंडिया के लिए कोई है ही नहीं, भागीरथी का सोर्स है भाई, वन ऑफ दी अर्ली स्ट्रीम्स दैट कन्फ्लुएंसेस विद अलकनंदा, और अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, सारे प्रयाग, पंच प्रयाग, दैट गिव्स यू गंगा, एंड गंगा इज द बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हम इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो सियाचिन का स्नाउट लेंथ 50 किलोमीटर, कैजुअली तो नहीं लिया जा सकता इस लेंथ को। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ट्रांस हिमालयाज लाइज टू ली साइड ऑफ हिमाद्री, मतलब होता है, देखो समझो, ये मेरा ट्रांस हिमालयाज, ये मेरा हिमाद्री, ये मेरा हिमाचल, ये मेरा शिवालिक, ये नॉर्थ से साउथ बना दिया। नदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न स्लोप्स सन बियरिंग होते हैं, ठीक है। शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, कराकोरम, ये सन बियरिंग है, ये सन बियरिंग है, ये सन बियरिंग है, ये सन बियरिंग है। नदर्न स्लोप पर सनरेज नहीं पड़ पाते, ठीक है। अब जरा 2 मिनट के लिए सब लोग पेन ड्रॉप करो, जरा हमारे पाम को देखो, सब लोग देखो ध्यान से। ट्रांस हिमालयास, आइडियली दिस शुड बी सन बियरिंग, बट इसके बिल्कुल साउथ में खड़ा है हिमाद्री, एलिवेशन दोनों की बराबर। आपको बात समझ में आ रही है? तो सदर्न स्लोप भी तो नॉन सन बियरिंग हो गया मेजरली। अब हिमाद्री को देखो, हिमाचल इधर है, तो उसका ग्लेशिएटेड एरिया पर तो सन बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रांस हिमालयास पर नहीं है। आई होप इट इज कंफर्टेबल। हैव यू वंडर्ड, लद्दाख को बैरन ब्यूटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? लद्दाख के माउंटेन्स या लद्दाख की कोई भी आपने इमेजेस या डॉक्यूमेंट्री देखी है, वेजिटेशन आपको रेयर दिखता है, और बाकी आप हिमालयन रीजन में देखो पाइन्स, स्प्रूस, फर, ग्रासलैंड, बहुत कुछ। क्यों? सन बियरिंग नहीं है, सनरेज नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? ली साइड ऑफ हिमाद्री बना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ ग्लेशियर। स्नाउट लेंथ is much lengthier for trans Himalayas compared to northwestern Himalayas. Northeastern Himalayas definitely comparatively smaller snout length, उनकी तो हाइट भी ज्यादा है, maritime influence।
तो सेकेंड फैक्टर ये हुआ। समझ में आई बात? वेरिएशंस डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएशन का कॉज 1 लोकेशन, डन। वेरिएशन का कॉज 2 हाइट, डन। I'll write altitude because I want you to be comfortable with the technical terms that we use. अरे altitude, जो पोलर आइस कैप्स होते हैं, जैसे एंटार्क्टिका है या ग्रीनलैंड है, सोच कर देखो, आइस, ग्लेशियर, मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस। एक मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस कॉन्टिनेंट, ग्रेडियंट होगा तभी तो मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा ग्रेडियंट दिखा है, और ये हिमालयास का ग्रेडियंट है। मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस ज्यादा एक्टिव तो इधर ही होगा। कैपेसिटी टू इरोड, ट्रांसपोर्ट, ब्रोकन रॉक मटेरियल को ज्यादा जनरेट करेगा। मान से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, जितना ज्यादा ब्रोकन रॉक मटेरियल को जनरेट करेगा उतना मोरेन बनाएगा, इसलिए मोरेनिक डैम ज्यादा कॉमनली बनेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर आप क्या क्रिएट करो, डेब्री का मतलब क्या होता है, रॉक डेब्री भी बोल सकते हो, डेब्री भी बोल सकते हो। इट इज ब्रोकन रॉक मटेरियल। रॉक डेब्री दो तरीके के आउटलाइन किए जाते हैं ग्लेशियर्स में, एक को बोलते हैं थिन, एक को बोलते हैं थिक लेयर। थिन होगा तो क्या करेगा, सूट पार्टिकल्स सुना है, ब्लैक कार्बन सुना है। ब्लैक कार्बन क्या करता है, आइस के ऊपर ब्लैक लेयर बना दे, आइस क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। अभी हमने व्हाइट इमेजेस आपको आइस की दिखाई, तो आपको कैमरा में भी वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था। आइस क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। अगर थिन लेयर बन जाएगा डेब्री का ग्लेशियर पर, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो मेल्ट को इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है? और थिक क्या करेगा, इट विल क्रिएट दैट ब्लॉकिंग इफेक्ट। माने क्या जनरेट कर देगा, इट विल जनरेट आउट, ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू मेंटेन द एल्बिडो इफेक्ट, रिफ्लेक्टेंस ऑफ आइस, but it by default will not be generating that absorption and melting. तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है when it comes on to regulating, I'll write it that way, ablation, and it enhances ablation. अब आप कहोगे भाई इसको लिखने की क्या जरूरत है, ये कौन सा वेरिएशन पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है, ये रिलेट करता है गंगोत्री के साथ, ये रिलेट करता है सियाचिन के साथ। इसी के लिए काराकोरम एनोमली आता है हमारे रेफरेंस पर। काराकोरम एनोमली सिर्फ इसलिए नहीं, अब बहुत सारी चीजें, मेरे पास मॉडरेट मास ऑफ स्नो एंड आइस है व्हेन इट कम्स टू गंगोत्री। गंगोत्री रिलेट्स टू थिनर डेब्री which is making absorption enhanced and thus faster ablation. Gangotri is the example of the glacier which is not just reducing in its snout, it is also thinning in its volume. Compared to it, Karakoram, anomalous, opposite characteristic. Anomaly माने deviation from what we refer as normal. अब ये किस वजह से हो रहा है, पहली चीज तो है कि वो थिकर मास है, दूसरी चीज है दैट इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रेसिपिटेशन। काराकोरम कहां पर है, नॉर्थ में तिब्बतन प्लाट्यू, साउथ में हिमाद्री। बस आप ऐसे इमेजिन करो, यहां पर जो कुछ है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, एवलांचेस से भी आकर स्नो यहां एक्यूमुलेट ही होगा। ये ऐसा माउंटेन वॉल के बीच का एरिया है, इसका रिलीफ ऐसा है दैट देयर इज मोर एक्यूमुलेशन देन वॉशिंग ऑफ। उसके बाद ये रिलेट करता है थिक डेब्री से। गंगोत्री में जितना मेल्ट सरफेस ग्लेशियल वाटर है वो फर्दर क्या एनहांस करता है, आइस का एल्बिडो है, और जो मेल्ट वाटर लेक्स बनेंगे वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेगा। इसलिए थिन और थिक के साथ आप चौथा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, हमने मॉडल आंसर में चौथा पॉइंट ऐड किया है, ये आप इसी के साथ लिख सकते हो। मेरा पर्पस था कि आपको काराकोरम एनोमली के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं, इसलिए उसको एनलार्ज कर दिया, दैट वी आर हैविंग बोथ रिट्रीट, वी आर एक्सपीरियंसिंग बोथ, एंड सर्जिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ऑफ कोर्स दिस सर्जिंग इज नॉट फॉरएवर,
कुछ समय के बाद वहां पर भी रिट्रीट आएगा, बट अभी के लिए सर्जिंग कहां पर है, ट्रांस हिमालयास, रिट्रीटिंग कहां है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास। आपको बात समझ में आ रही है? आपने जब ये वेरिएशन बता दिया तब फिर आप उसके बाद ऐड करो। अब क्या ऐड करोगे? What are the climate change effects on it? Climate change effects on it is not just thinning, retreating, इनको मिस नहीं करना है, but also glacial lake outburst flood। और कौन से फ्लड्स होंगे हमारे केस में? हमारे केस में बाय डिफॉल्ट मोरेनिक डैम होगा, और हमने आपको एग्जांपल 2013 और 2023 का बता दिया। अब इसमें जो वैल्यू एडिशन है, इसरो इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैंने आपको शुरू में बताया 28,000 ग्लेशियल लेक्स हैं इंडियन हिमालयन रीजन में। इसरो एंड एनडीएमए ने जो GLOF के हजार्ड का स्टडी किया है, हजार्ड मैप तैयार किया है, 197 आर बीन आइडेंटिफाइड एज hazard prone, and that is where we are taking the attempt, proactive attempt, खाली rescue rehabilitation है। So surveying, risk mitigation, preparedness, जो हम disaster risk reduction के साथ relate करते हैं। तो आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए? वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन नहीं लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है। तो वे फॉरवर्ड में वैल्यू एडिशन ये नहीं दैट वी आर मोर ससेप्टेबल टू सच GLOF बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द क्लाइमेट, अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। आपको एक पॉजिटिव एज पर खत्म करना है, तो आपको जरूर लिखना चाहिए दैट व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया टू मिनिमाइज रीजन। आप कंक्लूजन फिर इसके बाद लिख सकते हो, पहले रिस्क मिटिगेशन, that when we talk about these glaciers or these floods caused by glaciers, imagine karo, these glaciers are the source of water, source of hydroelectricity generation. They are the determiners of irrigation in the entire Indo-Gangetic plain and livelihood. ज़्यादा डिटेल्स में भी ना जाओ तो इतनी जानकारी तो है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम are considered to be the densest clustered states of our country. कुछ ज्यादा नहीं, एक जनरल लॉजिक अपनाओ, छोड़ दो सारे पॉपुलेशन डिटेल्स को, सिर्फ एक जनरल लॉजिक अपनाओ। डू आई साउंड लॉजिकल इफ आई से कि ह्यूमन पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है, माने डेंसिटी पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने झुंड में लोग रहते हैं, डेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द हाइट। प्लेन पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा, प्लेट्यू पर उससे कम होगा, माउंटेन्स पर सबसे कम होगा। तो पूरा का पूरा इंडस ब्रह्मपुत्र गंगा प्लेन जो है, माने असम हम रैंक में काउंट नहीं कर रहे, 2011 सेंसस ऐसे भी हिस्टोरिकल है, बट एक पैटर्न को अगर बात करें तो असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आर डेंसेस्ट क्लस्टर्ड स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन कंट्रीज एवरेज है, और GLOF सिर्फ ग्लेशिएटेड एरिया या माउंटेनस एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये पूरा का पूरा सेटलमेंट विच इज डाउनस्ट्रीम को इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज द रीजन वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो आप इसका रिस्क मिटिगेशन एंड यू आर अप्लाइंग ऑन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, हमने इसके बारे में बात कर दी थी बट हम फिर भी लिख देते हैं, विद यूज ऑफ बैथीमेट्री, सैटेलाइट बेस्ड फैक्टर। बैथीमेट्री टर्म हम ज्यादा ओशियानोग्राफी में यूज करते हैं, बट बैथीमेट्री इज एन अटेम्प्ट टू लर्न डेप्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लेशियर लेक, कि माने उस लेक की कितनी स्टेबिलिटी है, वो कितनी इजीली ब्रीच हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द क्लाइमेट और बिकॉज ऑफ द लैंड यूज चेंज, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स एज ह्यूमन इंड्यूस, बिकॉज ऑल दीज आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इसी तरीके अब आपने इस चीज को नोटिस किया कि जब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने आपको एक रेडीमेड एग्जांपल दे दिया किस चीज का, जो हम लगातार रिपीट कर रहे हैं। इमर्जिंग इश्यूज इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो आपने यहां से कॉन्सेप्ट यहां डाल दिया, और जब आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कॉज लिख रहे हो तो आप एग्जांपल्स यहां से ले लो।
ये इंटीग्रेशन अगर हमने डेवलप कर लिया, हमारे को 300+ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना कन्वेंशनल रोट लर्निंग, उस पर काम नहीं करना है। यू हैव टू टेक द स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन के लिए कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। जैसे आज हमने फर्स्ट क्लास में भी आपको कुछ टर्म्स समझाए, नहीं तो हमारे दिमाग में तो ये डाउट रहता है कि आइस शीट है, आइसबर्ग है, आइस फ्लोज है, ग्लेशियर है, डिफरेंस ही क्या है? क्योंकि जब तक आप वो डिफरेंसेस को नहीं समझोगे तब तक, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इन योर राइटिंग। इफ यू आर क्लियर, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर राइटिंग दैट यू आर क्लियर। इफ यू आर नॉट क्लियर, वो हेजिटेशन आपके राइटिंग में, सिर्फ इंटरव्यू में आप बोलते समय हेजिटेंट हो रहे हो नहीं, आपके राइटिंग में पता चलता है कि आपने हेजिटेंट राइटिंग लिखा। ठीक है, आई होप इट वॉज एन एनरिचिंग सेशन। हमारा डी कोडिंग ऑफ द सिलेबस मैक्रो तो बता दिया, बट ट्रेंड एनालिसिस हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आई विल बी टेकिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, rather few very important aspects as the core theme, high yielding themes। आपके पास पूरा PDF है हमारे इन 12 से 15 दिनों के शेड्यूल का, उसको अपने सामने रखिए। I'll be going by it absolutely religiously। Only thing that I am taking the flexibility of कि हमने 3 दिन रखा था, 4 दिन रखा था, वो 4 का 5 नहीं होगा, 4 का 3 हो सकता है, तो वो 1-2 दिन का इधर उधर चक्कर रहेगा। That is it। I'm closing down for today। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछो, आप लोग भी टाइप करो जल्दी से। इट इज थिकर मास ऑफ स्नो एंड आइस नेचुरली ऑल्सो बिकॉज इट एक्सपीरियंस सप्लाई ड्यूरिंग विंटर्स। पहली चीज बताई। दूसरा, जब कराकोरम एनोमली समझा रहे थे तो आपको ये बताया कि कराकोरम इज और कराकोरम ग्लेशियर्स आर लोकेटेड सच कि वहां जो ग्लेशियर के मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस का जो मटेरियल है वो एवलांचेस से भी सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो एवलांच बाकी नीचे नहीं उतर पाएगा, हिमाद्री से तो नीचे उतर कर मेल्ट हो जाएगी। तीसरी चीज आपको बताई दैट इट इज कोरिलेटेड विद लेसर प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर सरफेस फ्रोजन कैरेक्टरिस्टिक। और चौथी चीज बताई दैट इट हैज गॉट थिक डेब्री विद इट, और डेब्री का भी फिर वही सोर्स है माउंटेन वॉल। सो वो सारी चीजें इसको कराकोरम एनोमली पर डालती हैं दैट इट इज द एग्जांपल ऑफ सर्जिंग ग्लेशियर, जबकि वर्ल्ड वाइड आप कह रहे हो रिट्रीटिंग ग्लेशियर। गंगोत्री उसके मुकाबले में स्नाउट लेंथ भी कम कर रही है और थिन भी हो रही है। Debris part is not much clear to me. What is not clear is what you have to apply Mansi. ऐसे तो बहुत मुश्किल है। Yes, who is speaking now? Good evening, ma'am. Good evening. Yes. First of all, I'm sorry, I didn't mean to transcribe the meeting. I just thought You should not do it. That is unethical. In any case, yes. What is your question? Altitude decides temperature, right? So temperature decreases with increase in height. India being a tropical country, if I just go with India, I'll say Indian snow line is 4,500 meters, and that is what you'll read in NCERT. But because my question is asking me to talk about variations in nature of glaciers, I have applied my geographical understanding and my comprehension of the content, and I've created that the altitude of the snow line is also variable. More I go west, I become more continental. More I go east, I become more maritime. Maritime का एक मतलब होता है that I'll become more wet, बारिश ज्यादा होगी, और दूसरा होता है that I'll be more equitable. Equitable का मतलब क्या? Temperature with increase in height will decrease much gradually. तो इसलिए यहाँ स्नो लाइन कहाँ चला जाएगा? हायर हाइट में, जेमू ग्लेशियर, और यहाँ स्नो लाइन कहाँ रहेगा? कंपैरेटिवली लोअर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ 5,000 से 5,500 मीटर ले रहे हो, यहाँ 4,000 से 4,500 मीटर ले रहे हो, बट फिर भी तो डिफरेंस है। आपने वेरिएशन का पॉइंट तो बना ही नहीं। उसी में फिर आप कराकोरम को ऐड करते हो ऑन द ली साइड, ठीक है। इस वजह से वी आर टेकिंग रेफरेंस ऑफ डेब्री एक्यूमुलेशन। कराकोरम में क्या बोल रहे हैं? बैरियर हो रहा है ना। गंगोत्री में क्या हो रहा है? गंगोत्री हिमाचल ड्रेन डाउन कर जाएगा ना, तो डेब्री एक्यूमुलेशन कम है।